Hello my dear students, welcome back to our YouTube channel Tech English. Students, today I will teach you the topic notice writing, and it is very important topic. It is very easy topic also if you know the tips and you know the right format. So in this video I will teach you the format of notice writing, some important tips to remember, as well as I will tell you one example of the notice writing. So if you watch the full video, I am very sure that you will get full marks in your examination. So don't skip the video, watch the full video, and if you like the video, please hit the like button. Let's start. First of all, let's see what is a notice. A notice is a written or printed information that can be in the form of an official statement of public importance or a warning in advance. It is written in order to inform a large number of people about something that has happened or is about to happen. It is generally written in a formal tone because you are addressing to some people, those who are not related to you, they are not your family members. So it should be written in a formal tone. Notices are factual and to the point. It is a very important point of notice writing that it should be written in a brief note. Okay. What is the purpose of writing notices? So the purpose of writing notice are basically providing information regarding an important event that is about to happen or has happened, publicly display information either in the newspaper or on a specific display board for others to know and follow, announce birth or deaths, announce occasion like inauguration or sales, make appeals or extend invitations. So these are some purposes of notice writing. There are some types of notice writing. For example, notice for meeting, notice for events like competition, celebration, annual sport event, winter carnival, cultural festival, etc. Notice for lost or found, or for tours, fairs, exhibitions, workshops, seminar, debates, group talks, etc. Or it can be written for appeal, warning, guideline, message in public interest. It can be also written for change of name, residence, company, bank account, timing, etc. So these are some facts about notice. Now let's see some important tips which will help you to gain full marks, and because of these important points, most of the time if you don't mind these points, if you don't remember these points, your marks are deducted. So let's see these important tips one by one. Adhere to the specified word limit or 50 words. It means that you don't have to exceed the word limits of notice writing, otherwise your marks will be deducted. Next is write the notice in proper format. This is very important. If you don't follow the proper format, then also your marks are deducted, because the marking division is between format and content. Write in formal and polite language. So the language should be, the way of writing the notice should be polite. You don't need to be very aggressive, you have to be polite and you have to be formal. Write the notice in indirect speech or passive voice only. It is very important point. You can't write the notice in active voice or direct speech. The type of the way of writing should be in passive voice or indirect speech only. Okay, don't forget this point. Don't use personal pronouns like I and we. It is also a very important point that you don't remember, and so your marks are deducted. Next point is proper difference between date of issuing notice and date of event. It is also very important point, and most of the students don't remember this point. What does this sentence mean? It means that what is the date of issuing notice and what is the date of event. There should be a gap between. If you are writing notice today, then you don't have to write the date of event the same date. Okay, it should be after some days. अगर आप आज लिख रहे हो नोटिस, तो आपको कुछ दिन बाद की डेट जो है वो आपको डेट ऑफ इवेंट में मेंशन करनी है, ना कि आपको आज की ही डेट मेंशन करनी है. ये मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं. ओके, सो यू डोंट हैव टू डू दिस मिस्टेक. The notice should be put in a box only. It is a very important point, and
यू डोंट हैव टू फॉलो दिस पॉइंट ऑल्सो। जब भी आप नोटिस लिखोगे, आपने भले ही पूरा नोटिस अच्छे से लिखा हो, लेकिन अगर आपने बॉक्स में उसे नहीं किया है तो उसके कारण भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट इफ़ यू वांट टू गेट फुल मार्क्स। Now let's see that what are the things that are included in a notice writing. So first thing that you have to write in notice writing, that is name and place of the school or organization, institute or office. Issuing the notice should be mentioned at the top with the name of place. तो जिस भी अथॉरिटी ने, जिस भी इंस्टीट्यूट ने, जिस भी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन ने नोटिस को इशू किया है, उसका नाम सबसे टॉप पे होना चाहिए और उसके नाम के बाद कॉमा करके आप प्लेस का नाम भी लिखोगे। आपको क्वेश्चन में प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट का नाम मिलेगा। नेक्स्ट इज़ दैट राइट द वर्ड नोटिस इन कैपिटल लेटर्स। तो ये भी मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं, नोटिस को आप नॉर्मल स्मॉल वर्ड्स में लिखते हैं, तो वो गलत है, आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। राइट द डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस एट लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको जब भी डेट लिखोगे, आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे। कई स्कूल में, कई बोर्ड्स में राइट साइड में भी लिखा जाता है, तो वो आप अपने बोर्ड के हिसाब से करोगे जैसा आपके यहाँ फॉलो किया जाता है। हेडिंग और सब्जेक्ट शुड बी आई कैचिंग, ब्रीफ एंड कॉन्साइज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी हेडिंग हो, जो भी टाइटल हो, जो भी सब्जेक्ट हो आपका नोटिस का, वो बहुत शॉर्ट होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि सबका ध्यान उस पर चला जाए। The content must include 8 W's of writing. It is a very important point. क्या कंटेंट में होना चाहिए, तो इसके लिए 8 W's of writing एक रूल बताया गया है। इसमें क्या है, व्हाट, तो व्हाट मतलब क्या, पर्पस क्या है नोटिस का, हु स्पेसिफिक ग्रुप, इट मीन्स दैट किसे आप एड्रेस कर रहे हो, किसके लिए वो नोटिस लिखा गया है, व्हेन, उस इवेंट का टाइम क्या है, उसकी डेट क्या है, वेयर, तो उसका वेन्यू क्या है, प्लेस का है, कहाँ पे वो इवेंट होगा, कहाँ पे प्रोग्राम होगा। ओके, व्हाट टू डू, तो व्हाट टू डू में इंस्ट्रक्शन आपको क्या फॉलो करनी है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। होम टू कॉन्टेक्ट, और आपको अगर कोई इशू हो तो आप किसे कॉन्टेक्ट करें, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज़ signature, name and designation of the person issuing the notice should be mentioned properly. तो जिस भी पर्सन का नाम आपका डेजिग्नेशन पे लिखा गया है, उसका नाम बहुत सही से लिखा होना चाहिए। सिग्नेचर जो भी हो वो बहुत प्रॉपरली हो, और डेजिग्नेशन जब आप लिखेंगे तो हमेशा उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, पुट द नोटिस इन अ बॉक्स, और जब भी आप नोटिस लिखेंगे उसके बाद आप उसे एक रेक्टेंगल बॉक्स में आप पुटअप करोगे। ओके, आई होप दैट यू विल फॉलो ऑल दिस पॉइंट्स। सो नाउ लेट्स सी फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी एंड प्लेस। तो ये आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा। उसके बाद आप नोटिस की हेडिंग लिखोगे, और नोटिस की हेडिंग आपको कैपिटल लेटर में लिखनी है और अंडरलाइन करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप लिखोगे डेट, और डेट आपकी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होगी, और आपकी जो डेट है उसका फॉर्मेट ये होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 8 अगस्त 2020, तो आप इसी तरह लिखोगे, जो डिजिट है उनमें नहीं लिखोगे, 8/8 2020 इस तरह आप नहीं लिखोगे, आप इसी फॉर्मेट में लिखोगे। नाउ यू विल राइट हेडिंग और टाइटल। तो यहाँ पे हेडिंग या टाइटल जो भी आपका टॉपिक है, जिस भी बारे में नोटिस है, आपको उसे लिखना है। इट शुड बी शॉर्ट, इट शुड बी कैची, ये आपको मैंने बताया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, तो वहाँ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो टाइटल है वो रिलेटेड होना चाहिए नोटिस से ही, नोटिस के टॉपिक से, और अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए। नाउ यू विल राइट कंटेंट। तो कंटेंट में क्या क्या बातें आपको मेंशन करनी है, क्या क्या बातें इंक्लूड करनी है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्रॉपर बिगनिंग करनी है। तो आप बिगनिंग के लिए फॉर एग्जांपल लिख सकते हो, दिस इज़ टू इन्फॉर्म टू ऑल द मेंबर्स और स्टूडेंट्स। अगर स्कूल्स के लिए है तो आप स्टूडेंट्स लिख सकते हो। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, क्लब मेंबर्स के लिए है तो आप मेंबर्स लिख सकते हो। नेक्स्ट इज़ दैट, जो मैंने आपको बताया था, आपको 7W का ध्यान रखना है। 7Ws जो हैं, तो वहाँ पे व्हाट क्या पर्पस है, हु किसके लिए है, टाइम डेट क्या है, प्लेस क्या है, वाई, व्हाट टू डू, होम टू कॉन्टेक्ट। तो इन सभी चीज़ों को आपको मेंशन करना है। ये सभी आपके रेलिवेंट पॉइंट्स होंगे जो आपको इंक्लूड करना है नोटिस के कंटेंट में।
इसके अलावा अगर आपका नोटिस किसी फीस सबमिशन के रिगार्डिंग है या नेम सबमिशन के रिगार्डिंग है तो उसकी डेडलाइन क्या है ये आपको मेंशन करनी है। इन केस अगर आपने किसी इवेंट या प्रोग्राम के बारे में लिखा है तो आप उसका डेट, टाइम और प्लेस उसे आप अलग से मेंशन करोगे। जो आप कंटेंट लिख रहे हो उसमें आप नीचे ही लिखोगे, उसके बाद अलग से कि उसका इवेंट का, प्रोग्राम का टाइम क्या है, डेट क्या है या प्लेस क्या है, वेन्यू क्या है। ओके, और लास्ट में जो आप नोटिस कंप्लीट करोगे, कंटेंट कंप्लीट करोगे तो उसका प्रॉपर एंडिंग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लिखा जाता है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड और यू कैन कॉन्टेक्ट द अथॉरिटी। ओके, तो ये आपका जो एंडिंग है वो इस तरह होना चाहिए। तो अंडरसाइंड मतलब क्या, जिसका नीचे साइन है। ओके, इसके बाद आप लिखोगे नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, जिसने भी नोटिस को इशू किया है उसका नेम लिखोगे और उसके बाद आप डेजिग्नेशन लिखोगे। डेजिग्नेशन आपको हमेशा ब्रैकेट में लिखना है। डेजिग्नेशन मतलब पोस्ट। फॉर एग्जांपल स्कूल में है तो वाइस कैप्टन हो सकता है, हेड बॉय हो सकता है, हेड गर्ल हो सकती है, प्रिंसिपल की तरफ से नोटिस हो सकता है। ओके, लाइक फॉर चेंज इन टाइम, चेंज अगर होगा स्कूल के टाइम में तो प्रिंसिपल की तरफ से नोटिस होगा। किसी एक्टिविटी में कोई पार्टिसिपेट करना हो तो एक्टिविटी इंचार्ज की तरफ से होगा। तो जो भी पोस्ट है वो आपको उसके अकॉर्डिंग लिखनी है। So now let's see one example of notice writing so that you can understand that you have to write the notice writing in which way and how. Okay, so let's see. Suppose that this is the question which is asked in your examination. This will not be asked but I am saying just. Okay, suppose that this is the question. You are Avinash, cultural secretary of Queen Mary Convent, Lucknow. तो यहाँ पे देखिए हमें दो चीज़ें मिली, एक तो नेम और डेजिग्नेशन मिला और यहाँ पे हमें इशूइंग अथॉरिटी का नाम मिला और प्लेस भी मिला। ओके, यू वांट सुटेबल स्टूडेंट्स टू रिप्रेजेंट योर स्कूल इन द इंटर स्कूल इंग्लिश डिबेट टू बी हेल्ड शॉर्टली, प्रोवाइडिंग द नेसेसरी डिटेल्स, राइट अ नोटिस इनवाइटिंग पार्टिसिपेशन। तो यहाँ आप देखिए नोटिस का टॉपिक क्या है कि जो भी पर्सन है जो नोटिस को लिख रहा है उसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को एड्रेस करके एक नोटिस देना है, क्योंकि स्कूल में एक डिबेट कंपटीशन होने वाली है और वो चाहता है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करें। तो अब स्टूडेंट्स के लिए ये नोटिस लिखा जा रहा है, तो कैसे लिखा जाएगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें इंक्लूड करनी है, कैसे डिटेल्स लिखनी है, तो वो देखते हैं। ओके, तो जैसा कि क्वेश्चन में देखा इशूइंग अथॉरिटी का नेम क्या है, क्वीन मैरी कॉन्वेंट और प्लेस है लखनऊ। तो आपको इस तरह से लिखना है। उसके जस्ट बिलो आपको लिखना है नोटिस। नोटिस को आप हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे और हमेशा अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद आप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आप डेट लिखोगे और डेट को आप इस फॉर्मेट में ही लिखोगे, 8 अगस्त 2020-21 आप इसी तरह लिखोगे। आप क्या लिखोगे, आप सब्जेक्ट और टाइटल। ओके, जो आपका हेडिंग है, जो आपका सब्जेक्ट है वो आप लिखोगे। जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा इंटर स्कूल इंग्लिश डिबेट था टॉपिक, तो वो हमारा हो जाएगा टाइटल। ये शॉर्ट है और इससे हमें नोटिस का क्या सब्जेक्ट है वो हमें पूरा क्लियर हो रहा है। सो नाउ यू हैव टू डू प्रॉपर बिगनिंग। कैसे बिगनिंग करेंगे आप, स्टूडेंट ऑफ क्लासेस 9 to 12 आर हियर बाय इन्फॉर्म अबाउट एन इंटर स्कूल इंग्लिश डिबेट टू बी होस्टेड बाय द स्कूल ऑन 16 अगस्त 2020 और 21 whatever इन द स्कूल ऑडिटोरियम एट 9 AM। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर बिगनिंग कैसे की गई। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्योंकि एड्रेस किया गया तो यहाँ पे लिखा गया स्टूडेंट ऑफ क्लासेस 9 to 12 आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड। ओके, तो आपको इस तरह से बिगनिंग करनी है। सपोज दैट किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी मेंबर्स के लिए लिखा है तो वहाँ पे द मेंबर्स ऑफ दिस क्लब आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड आप ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बिगनिंग इस तरीके से करनी है, आप लाइन याद कर लीजिएगा। तो अब नोटिस है किस बारे में, नोटिस है अबाउट एन इंटर स्कूल इंग्लिश डिबेट जो कि स्कूल में होस्ट होगी। ओके, अब यहाँ पे डेट लिखा गया है कि कब होगी, ऑन 16 अगस्त। तो यहाँ पे इशू कब हो रहा है, 8 अगस्त को, और कब होगा वो 16 अगस्त को। प्लेस अब है, वेन्यू क्या होगा, स्कूल ऑडिटोरियम। उसके बाद टाइम दिया गया है एट 9 AM। तो जो मैंने आपको बातें बताई थी कि आपको टाइम लिखना है, आपको प्लेस लिखना है, पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। अब इसके बाद आप डिबेट के टॉपिक के बारे में भी बताओगे कि क्या डिबेट का टॉपिक है। सो द टॉपिक ऑफ द डिबेट इज होमवर्क शुड नॉट बी गिवन एट प्राइमरी लेवल, कि प्राइमरी लेवल पे होमवर्क नहीं देना चाहिए। तो आप अब सभी बच्चों को अपने अपने
पॉइंट्स उसको जस्टिफाई करने, पॉइंट्स देने हैं कि क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि स्कूल मीनिंग द डिबेट विल बी प्रेजेंटेड द इंटर स्कूल शील्ड एंड द 3 बेस्ट डिबेटर्स विल बी अवॉर्डेड प्राइजेस। तो अब यहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या मिली कि जो भी स्कूल इस डिबेट को विन करेगा उसे इंटर स्कूल की शील्ड मिलेगी और 3 बेस्ट डिबेटर्स जो हैं उन्हें अवॉर्डेड प्राइजेस मिलेंगे। सो इंटरेस्टेड स्टूडेंट फ्रॉम ईच क्लास शुड सबमिट देयर नेम्स टू द HOD इंग्लिश बाय 10 अगस्त 2020 और 21। तो यहाँ पे ईयर इसलिए नहीं लिखा गया कि जिस भी ईयर में आप लिख रहे हो वो आपका लिख देना है। तो यहाँ पे क्या है, फर्दर इन्फॉर्मेशन हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिली कि जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो हर क्लास से 9 से 12 क्लास तक के जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो अपने नाम HOD को, इंग्लिश HOD को सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट डेट भी हमें मिली, वो क्या है, 10 अगस्त। तो यहाँ पे 8 अगस्त है इशू करने की डेट, 10 अगस्त है लास्ट डेट नेम सबमिट करने की, और कब ये होगा ये 16 अगस्त को। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका इशू होगा नोटिस और जब भी आपका इवेंट होगा, जो प्रोग्राम होगा, उसके बीच गैप होना चाहिए। और लास्ट डेट जो सबमिट होना है, लास्ट डेट चाहे नाम हो या मनी हो, उसके बीच और डेट जो इशू हो रहा है, नोटिस इशू हो रहा है, उसकी डेट के बीच भी आपके गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो रहा है। इसके बाद आप क्या लिखोगे, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, और फिर उसके बाद डेजिग्नेशन लिखोगे। आपको क्वेश्चन में ही मिला अविनाश नाम, तो यहाँ पे अपने अविनाश नेम लिखा, अपना क्लास लिखा, और डेजिग्नेशन क्या दी गई थी, कल्चरल सेक्रेटरी। तो ये था हाउ टू राइट। और अब देखते हैं मार्किंग स्कीम। तो जो मार्किंग स्कीम है वो बोर्ड वाइज डिफर करती है, नॉर्मली 4 to 5 के बीच में होती है। CBSE में जैसे 4 है, ओके, और कहीं बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में 5 भी होती है। जो छोटे क्लास है, पर क्लास 8 जो है वहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये डिपेंड करता है। तो बेसिकली अगर 5 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स का कंटेंट हो जाएगा और 2 मार्क्स का आपका फॉर्मेट हो जाएगा। अगर 4 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स का आपका फॉर्मेट होगा, 2 मार्क्स का कंटेंट होगा। तो 4 मार्क्स का मार्किंग डिवीजन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 मार्क्स का, देखिए कंटेंट है, हाफ मार्क्स का हेडिंग और सब्जेक्ट है, हाफ मार्क्स का नोटिस और डेट है, हाफ मार्क्स आपका किस में मिलेगा, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन जो आपका है उसको आप सही से लिखोगे तो आपको हाफ मार्क्स वहाँ मिलेगा। हाफ मार्क्स आपको मिलेगा नेम एंड डेजिग्नेशन में। तो यहाँ आप देखिए आपको छोटी छोटी चीज़ों में आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं और हाफ मार्क्स आपको आपके डिडक्ट भी हो जाते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें बहुत ध्यान देना है। सो आई होप दैट दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू like the video, please hit the like button. Those who are new viewer, please subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the information of the updates of the video. As well as if you like the video, please like and share among your friends. Please give your suggestion and feedback through your comments. So thank you all.